Hi, good morning, my dear student. Today we are going to start your class 11th history, chapter 9, theme 9, industrial revolution. In this chapter, we have discussed the previous topic like who were inventors, spinning cotton weaving, canals and railway, coal and iron, and introduction part of this chapter. These are topics discussed by me in your previous video, in your previous class also. Change lives. This topic was also discussed by me. In this topic, I told you that which type of changes that was occurring in Britain. मैंने आपसे कहा कि एकाएक इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन होने से लोगों की समस्याएं, एक तरफ लोगों की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही थी, शहरों में स्लम्स एरिया का विकास हो रहा था, अधिक शहरों का निर्माण हो रहा था, जो 50,000 तक के शहर थे, जो 70-50 तक केवल 29 थे 1850, जो पहले नंबर ऑफ सिटीज इन इंग्लैंड विद द पॉपुलेशन ओवर 50,000 ग्रू फ्रॉम 2 इन 70-50 टू 19, 2 से 70-50 टू 1800 के बीच वो 29 तक पहुंच गए। लोगों को खूब लाभ हुआ, लेकिन ठीक उसी तरह से लोगों में गरीबी भी बढ़ी। लोग मजबूर थे गंदी बस्तियों में रहने के लिए। ठीक विपरीत जो धनी लोग थे वो इन शहरों को छोड़ के गांव में अपने बड़े मैसन्स बनाने शुरू कर दिए थे, अपने बड़े भवन बनाने शुरू कर दिए थे। इसका दुष्प्रभाव पड़ा मजदूरों के ऊपर, उनके लाइफ के ऊपर, उनके जीवन के ऊपर। We will read the next topic and we will try to understand that what type of problem they faced. My dear, हम जब अगले टॉपिक को पढ़ेंगे तो आसानी से द वर्कर्स टॉपिक को पढ़ेंगे तो आसानी से समझ जाएंगे। A survey in 1842 revealed that the average lifespan of worker was lower than that of any other special group in cities. It was 15 years in Birmingham, 70 years in Manchester, 21 in Derby. More people died and died at a younger age in the new industrial cities than in the village they had come from. Half the children failed to survive beyond the age of 5. The increase in the population of cities was because of the immigrants rather than by an increase in the number of children born at family who already lived there. How strange! It is very clear that during industrialization, lifespan was very short. The city, no doubt to say that their number is increased, but their number increased with the help of migrants who came from rural area to urban area. Except the population of cities was immigrants rather than by increase in the number of the children born to the families who already lived in there. वो लोग जो शहरों में रह रहे थे उनके बच्चों की संख्या में वृद्धि से शहर की जनसंख्या बढ़ नहीं रही थी, बल्कि शहर की जनसंख्या बढ़ने का मेन कारण क्या था? शहर की जनसंख्या के बढ़ने का कारण था बाहर से आए हुए लोग। 1842 में किए गए एक सर्वेक्षण से यह पता चला कि जो वेतनभोगी मजदूर यानी कामगारों के जीवन की औसत अवधि, जो उनकी लाइफ स्पैन है, शहरों में रहने वाले किसी भी सामाजिक समूह के लाइफ स्पैन से कम थी। जो वर्कर्स थे उनकी आयु कम थी। बर्मिंघम में 15 वर्ष, मैनचेस्टर में 17 वर्ष, डर्बी में 21 वर्ष थी। इन नए
इंडस्ट्रियल सिटीज में गांव से आकर रहने वाले लोग ग्रामीण लोगों की तुलना में काफी छोटी आयु में मर जाते थे। वहां पैदा होने वाले बच्चों में से आधे तो 5 साल की आयु प्राप्त करने से पहले ही चल बसते थे। शहरों की आबादी में वृद्धि, वहां पहले से रह रहे परिवारों में हुए जो नए बच्चे पैदा हुए थे, उन बच्चों की वजह से नहीं बढ़ रही थी शहरों की जनसंख्या, बल्कि बाहर से आए हुए लोगों की वजह से बढ़ रही थी। डेथ वर प्राइमरली caused by the epidemic of the disease that spreads from the population of water, like cholera and typhoid, और ऑफ द एयर। जो ज़्यादातर मौत हो रही थी, ज़्यादातर लोगों की मृत्यु हो रही थी, उसमें उन महामारियों का भी कारण था जो वाटर पोल्यूशन से, जैसे कॉलरा, जैसे टाइफाइड, जैसे ट्यूबरक्लोसिस जैसे जो बीमारियां थी वो फैल रही थी। 1832 में कॉलरा का भीषण प्रकोप हुआ। माय डियर, when you will read this line, you can easily understand that, like the tuberculosis, more than 31,000 people died from an outbreak of cholera in 1832. Until the late 19th century, the municipal authorities were negligent in the attending to these dangerous conditions of life, and the medical knowledge to understand and cure these diseases was unknown. My dear, ये ज़्यादातर प्रॉब्लम जो थी वो यहीं से थी। जो ज़्यादातर मौत हो रही थी उसका कारण सिर्फ नेसेसरी नीड्स का पूरा ना होना था, बल्कि स्लम्स एरिया में फैली हुई प्रदूषण भी थी। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ये साथ साथ जो बीमारियां आई, उन बीमारियों ने इंडस्ट्रियलाइजेशन के समय वर्कर्स की जिंदगी को तबाह कर दिया। मौत ज्यादातर उन महामारियों के कारण होती थी जो जल प्रदूषण से, वाटर पोल्यूशन से, जैसे कॉलरा तथा टाइफाइड, और वायु प्रदूषण से, जैसे ट्यूबरक्लोसिस से होती थी। जैसा कि मैंने कहा 1832, the time that was 1832, the cholera was the furious stage. Cholera was in the furious stage. More than 31,000 people died from cholera in 1832 until late 19th century. 1832 में कॉलरा से 31,000 से अधिक लोग काल के गर्त में समा गए। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों तक स्थिति यह थी कि नगर प्राधिकारी जीवन की इन भयंकर परिस्थितियों की ओर कोई ध्यान नहीं देते थे, और इन बीमारियों के निदान और उपचार के बारे में चिकित्सकों या अधिकारियों को कोई जानकारी ही नहीं होती थी। हाउ स्ट्रेंज दैट द प्रॉब्लम दैट वाज बट किसी को इसकी खबर नहीं थी। आपकी ये लाइन कहती है, until late the 19th century, the municipal authorities were negligible in attending to these dangerous conditions of life, and the medical knowledge to understand and cure this disease was unknown. लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं थी। How can it possible? I mean to say that the rich people, the elite class people have no time to think about them. उनके बारे में सोचने के लिए उनके पास समय ही नहीं था. They have no time. Next topic is that women, children and industrialization. In this topic, we will see the problem of the women's. We will try to understand the children's who face difficulties during that time. The Industrial Revolution was time of important changes in the way that children and women worked. Children of the rural poor
had always worked at home or in the farm at jobs that varied during the day or between seasons. Under the watchful eye of parents or relatives, likewise in village, women were actively involved in farm work. They reared livestock, gathered firewood, and spun yarn on a spinning wheel in their home. औद्योगिक क्रांति एक ऐसा समय था जब औरतें और बच्चों के काम करने के तरीकों में महत्वपूर्ण बदलाव आया। ग्रामीण गरीबों के बच्चे हमेशा घर में या खेत में अपने माता पिता के साथ, अपने संबंधियों के साथ उनकी निगरानी में तरह तरह के काम किया करते थे, जो समय, दिन या मौसम के अनुसार बदलते रहते थे। इसी प्रकार गांव में औरतें भी खेत में काम में सक्रिय रूप से हिस्सा लेती थी। वे पशुओं का पालन पोषण करती थी, लकड़ियां इकट्ठा करती थी और अपने घरों में चरखे चलाकर सूत काटती थी। कारखानों में काम करना इस बिल्कुल अलग किस्म का होता था। वहां लगातार कई घंटों तक एक ही तरह का काम कठोर अनुशासन तथा तरह तरह के दंड की भयावह परिस्थितियों में कराया जाता था। डरा करके, धमका करके कठिन परिस्थितियों में महिलाओं से काम कराया जाता था। माय डियर, यू शुड नेवर फॉरगेट दैट कि जो मेल वर्कर्स थे, कि जो वेज होती थी, मजदूरी होती थी, केवल मामूली थी। उसे केवल अकेले घर का, मतलब यदि आदमी कमाए तो उससे घर का खर्च नहीं चल सकता था। जरूरत थी कि औरतें भी फैक्ट्रियों में काम करें, बच्चों को भी कुछ कमाना पड़ता था। जो जो मशीनों का प्रयोग बढ़ता गया, काम पूरा करने के लिए मजदूरों की जरूरत कम होती गई। इंडस्ट्रियलिस्ट आदमी की जगह, मेल की जगह फीमेल, विमेन वर्कर और चिल्ड्रंस को वरीयता देने लगे। वो उन्हें अधिक पसंद करने लगे, क्योंकि एक तो उनकी मजदूरी कम होती थी, फीमेल की और बच्चों की, आदमियों की तुलना में, और दूसरे वे उनके काम की गंदी, कमजोर, मतलब घटिया परिस्थिति में भी कम काम करने के लिए वो तैयार हो जाते थे, या यूं कहें कि उनसे ये काम कराना आसान होता था। किसी भी परिस्थिति में डांट करके, धमका करके, थ्रेटेंड करके उनसे काम इंडस्ट्रियलिस्ट या फैक्ट्री ओनर्स करा लेते थे। This is what explained in the line. When you will read this paragraph, you can easily understand that circumstances that were difficult against the women and children. Work in the factories with long, unbroken hours of the same kind of work, under strict discipline and sharp form of punishment, was completely different. The earning of women and children were necessary to supplement men's merge wage. As the use of machinery spread and fewer workers were needed, the industrialists preferred to employ women and children who would be less agitated about their poor working condition and work for lower wages than men. They were employed in the large number in cotton textile industry in the Lancashire and Yorkshire. Women were also the main workers in the silk. My dear, यहाँ पे सबसे जरूरी क्या है? कहता है कि स्त्रियां और बच्चों, महिलाएं और बच्चों को लंकाशायर और यॉर्कशायर के नगरों में स्थापित जो कॉटन मिल्स थी, जो कॉटन फैक्ट्रीज थी, जो कॉटन इंडस्ट्री थी, उसमें उनको काम पे लगाया जाता था। कॉटन के अलावा सिल्क, रेशम, फीते बनाने और बुनने के उद्योग धंधों में, और बर्मिंघम के जो धातु उद्योग में
बच्चों के साथ साथ महिलाओं का प्रयोग ज़्यादा किया जाता था एज ए वर्कर। औरतों को और बच्चों को ही इन शहरों में नौकरी दी जाती थी। कपास काटने की जेनी जैसे अनेक मशीनों ने तो कुछ इसी तरह की बुनाई इस तरह बनाई ही गई थी, उनको इस तरह से प्लान ही किया गया था। जेनी जो मशीन थी सूत काटने वाली, उसको कुछ इस तरह से बनाया गया था कि उसमें बच्चों की उंगलियां आसानी से जा सकें। बच्चे ही अपनी फुर्तीली उंगलियों और छोटी सी कदकाठी के कारण आसानी से काम उसमें कर सकते थे। बच्चों को अक्सर कपड़े की मिलों में रखा जाता था क्योंकि वहाँ मशीनें बहुत ही कम दूरी पर, या हम दूसरे शब्दों में कहें तो सटा कर रखी गई थी। मशीनों के बीच में छोटे बच्चे आसानी से आ जा सकते थे। बच्चों से कई घंटों तक काम लिया जाता था, यहाँ तक कि उन्हें हर रविवार को भी मशीन साफ करने के लिए काम पर आना पड़ता था, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें ताजी हवा खाने या व्यायाम करने का कोई मौका नहीं मिलता था। कई बार तो बच्चों के बाल, उनके कपड़े मशीनों में फंस जाते थे या उनके हाथ ही मशीनों में कुचल जाते थे। यहाँ तक कि बच्चे काम करते करते इतने थक जाते थे कि उन्हें नींद की झपकी आ जाती थी और वो मशीनों में गिरकर मौत के मुंह में चले जाते थे। That was a difficult situation, my dear. That's why the people, they started revolt against this type of activities. The lace making and knitting industries, as well as along with the children in the metal industries of the Birmingham. Machinery like the cotton spinning jenny was designed to be used by child work with their small build and nimble finger. Children were often employed in textile factories because they were small enough to move between tightly packed machinery. The long hours of work, including cleaning the machines on Sunday, allowed them little fresh air or exercise. Children caught their hair in machineries or crushed their hand, while some died when they fall into machines as they dropped off to sleep from exhaustion. Coal mines were also dangerous places to work in. Coal mine, no doubt to say that it is also the dangerous place to work in. Roof caved in, or there could be in explosion, and injuries were therefore common. The owners of coal mine used children to reach deep coal face or those where the approach path was too narrow for adults. Younger children worked as trappers who opened and shut doors as the coal wagons traveled through mines or carried heavy load of coal on their back as coal bearers. My dear, इन चीज़ों को देखें आप, इन बातों को समझें आप. What I want to say you, my dear, it is the very difficult situation for the male and female, दोनों के लिए, स्पेशली बच्चों के लिए. किस तरह से बच्चे ट्रैपर के रूप में खानों में काम करते थे. कोयले की खान में भी काम करने के लिहाज से किसी के लिए भी खतरनाक थी, बच्चों के लिए तो ज़्यादा खतरनाक थी. कोयले की खान की छतें धंस जाती थी अथवा वहाँ कभी कभी विस्फोट हो जाता था, जिसमें चोट लगना तो आम बात थी. कोयला खान के मालिक कोयले के गहरे और अंतिम छोर को देखने के लिए अथवा जहाँ जाने का रास्ता बड़ों के लिए, वयस्कों के लिए, एडल्ट्स के लिए बहुत सकरा होता था, वहाँ बच्चों को ही भेजते थे. छोटे बच्चों को कोयला खान में ट्रैपर का काम भी करना पड़ता था.
कोयला खानों में जब कोयला भरे डिब्बे इधर उधर ले जाए जाते थे तो वे आवश्यकता अनुसार उन दरवाजों को खोलते और बंद करते थे। यहाँ तक कि वे कोल बियरर्स के रूप में भी अपनी पीठ पर रखकर कोयले के भारी वजन को भी ढोते थे। कारखानों के मालिक बच्चों से काम लेना बहुत जरूरी समझते थे ताकि वे अभी से काम सीखकर बड़े होकर उनके लिए काम कर सकें, अच्छे से कर सकें। ब्रिटिश फैक्ट्रियों के अभिलेख से प्राप्त एविडेंस से पता चलता है कि फैक्ट्री मजदूरों से लगभग आधे ने तो वहाँ 10 साल से भी कम उम्र और 28% मजदूरों ने वहाँ 14 साल से कम उम्र की आयु में काम करना शुरू किया था। औरत और मजदूर मतलब विमेन्स को जो वेज मिलते थे, विमेन की मजदूरी मिलने से न केवल वित्तीय स्वतंत्रता महिलाओं को मिली बल्कि उनके आत्मसम्मान में भी बढ़ोतरी हुई। लेकिन इससे उन्हें जितना लाभ नहीं हुआ उससे ज़्यादा कहीं उनको हानि का सामना उठाना पड़ा। अपमानजनक परिस्थितियों में काम करना पड़ा। अक्सर उनके बच्चे पैदा होते ही शैशवावस्था में मर जाते थे। उन्हें अपने औद्योगिक काम की वजह से मजबूर होकर शहर की घिनौनी और गंदी बस्तियों में रहना पड़ता था। माय डियर, नो डाउट टू से दैट दिस इज द वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर देम। औरतें, उनकी स्थिति, उनकी परिस्थिति एकदम खराब थी, डल टू डल, एकदम ऐसी स्थिति जिसके बारे में हम कुछ सोच भी नहीं सकते। इतनी खराब स्थिति, इस परिस्थितियों में विमेन जी रही थी। अगर इस टॉपिक को देखें, कहते फैक्ट्री मैनेजर्स कंसीडर चाइल्ड लेबर टू बी important training for the factory work. My dear, no doubt to say that the coal mines were also dangerous place, but the factory managers considered child labor to be important training for future factory work. The evidence from the British factory records reveals that about half of the factory workers had started work when they were less than 10-year-old and 28% when they were under 14. Women may well have gained increased the financial and independence and self-esteem from their job, but this was more than offset by the humiliating terms of work they endured. The children they lost at birth or in early childhood and the squalid urban slums that industrial work compelled them to live in. My dear, अब इन चीज़ों को अगर आप समझें तो परिस्थितियाँ ऐसी थी जिसको इसमें इनको जीने के लिए मजबूर होना पड़ा। आज के लिए इतना ही। We will come to this topic in my next video and we will try to understand the articles where explain the actual condition of the worker. We will also read about the Charles Dickens and what he wrote about that industrialization which happened in Britain. तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एंड टेक केयर।